What is the crux of doing well in paper 2? What is my advice? You need to do 3 questions in section A. 3 questions in section A and compulsory. 3, well, 1 compulsory and 2 others. Only you have got choice of 1 question. Otherwise, good. 3 questions in section A and 2 questions in section B. Good. Question 1A. यहीं से पेपर खुल रहा है. देखो कितना खुशी होगी. देखो. What is de Broglie concept of matter waves? 10 marks. Evaluate the de Broglie wavelength of helium that is accelerated through 300 volts. Good. So helium is accelerated by 300 volts. What will be its energy? 300 eV. 300 eV is its energy. What kind of energy? 300 eV for helium. Helium 2He4. Mass 4 AMU. 4 AMU. 4 into 9, 3600. Much 3600 MeV. Correct. This is much less than that. This energy is much less than that. Correct. So what is the energy for helium? Non-relativistic energy. What kind of energy? Non-relativistic energy. And what is non-relativistic? 300 eV. That is the energy it is accelerated. Correct. Lambda is h by p. H by p. P is what? Root 2 me. E is p square by 2m. Non-relativistic. h upon root 2 me. वो भी बहुत सारे कैलकुलेट करके रखे रहते हैं. h by root 2 me. E is the energy. And E is what? eV. So क्या होगा? h upon root 2 meV. So what is that? 14.41 upon root v angstroms. Correct. 14.41 upon root v एंगस्ट्रॉम्स. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं. 14.41 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम. यही किया है ना प्रैक्टिस करके. रूट वी कितना? रूट 300. गुड. 8.6 डिवाइड करके बताइए कितना आ गया. निकल गया वेवलेंथ. निकल गया वेवलेंथ. हर एक से निकल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिसीजन यू हैव टेकन? Energy is non-relativistic. Energy is non-relativistic. First concept you have already defined 2 marks. What is de Broglie wave? De Broglie matter wave. Along with every moving particle, wave nature is associated. Along with every moving particle, wave nature is associated. That means every moving particle can be described by a wave, and it travels by a group velocity. Therefore, it is behaving like a wave group. How both the properties? Momentum is a particle property. Lambda is a wave property. They have been connected by de Broglie by h by p and experimentally demonstrated by Davison and Germer. Finished. पूरी theory लिख दी. Lambda is h by p. P is root 2 me. Non-relativistic. E is eV. h upon root 2 meV. h upon root 2 me का पहले से वैल्यू मुझे मालूम है 14.41 अपॉन रूट वी. कर दिया. अब अगर आप ये भी नहीं याद करके रखे और गलती कर देते न्यूमेरिकल में तो मैं क्या करूं? Have you done the desired hard work? अगर फार्मूला भी याद नहीं है आपको तो मैं तो ओरली बता दूं. 14.41 अपॉन रूट वी. 300 का वी. 300 का रूट वी कितना आ जाएगा आपको? 10 रूट 17 पॉइंट समथिंग आ गया. 17 और 14.9 के आसपास आ गए कि नहीं आपको? 0.8 आ गया. ऑलमोस्ट रफ कैलकुलेशन. करेक्ट. यू कैन डू द प्रिसाइज. बट इससे ज्यादा, एक से ज्यादा तो नहीं आना चाहिए ना. इट शुड बी लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम. इजिली आई कैन डू दैट. इजिली कैलकुलेशन कुड हैव बीन डन. सब कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? एवरीबडी वुड हैव डन इट. गुड. पेपर इज सिंपल. कैसा पेपर है? सरल है. हो गया जी. 10 मार्क्स खत्म. और करेक्ट लिख दिया तो 6 दे दिया आपको. और शुरू में 6 एंड आप भी दे सकता हूँ. और बात समझो. शुरू में अगर आपने सारा लिख दिया, सारा डिफाइन कर दिया, व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ऑल दोस थिंग्स यू हैव रिटन, आंसर इज करेक्ट, देन इन फर्स्ट पार्ट आई वुड हैव गिवन यू 6.5 marks because I am open. After 3 parts, 3 numericals, I will make up my mind that whether I have to give you 65% or I have to give you 60% or I have to give you 55% depending upon your presentation. If you are neat and clean, जैसे मुझे कैसे नीट एंड क्लीन कैसे होगा, कैसे नीट एंड क्लीन होगा मुझे पूरा मालूम है. और मुझे ये तक मालूम है 14.41 अपॉन रूट वी. और रूट वी रूट 300 कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए. क्योंकि 17 का कितना होता है? 289 होता है. और 18 का कितना हो जाता है? उससे ज़्यादा हो जाता है. करेक्ट. सो 17.5 के आसपास ही होना चाहिए. रूट 300 कितना होना चाहिए? 17.5 के आसपास होना. ये 17.5 है, ऊपर 14.4 है, तो 1 से कम हो गया कि नहीं? 0.8 या 0.8 के आसपास है. तो ये तो मैंने तुरंत ही इमीडिएटली लुकिंग एट द आंसर आई हैव कम टू नो दैट व्हाट शुड बी द आंसर. फॉर करेक्ट आंसर ओनली आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. आई हैव क्रॉस चेक दैट कैलकुलेशन ट्वाइस बिकॉज आई न्यू विद इन 2 minutes आई विल बी एबल टू राइट. ये सब जो लिखना है 2-3 मिनट में मैं सारा आंसर लिख दूंगा.
डेविसन जर्मर भी लिख दिया मैंने एक्सपेरिमेंटली भी डिमॉन्स्ट्रेट करा दिया कि लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू h by p, अदरवाइज इट वाज हाइपोथेसिस, अदरवाइज इट वाज एन hypothesis. That also within 3 lines I have made clear that I know the whole topic. That I know the whole topic I have made clear that lambda is h by p, the connection of the particle property called momentum and wave property called lambda. This formula is experimentally verified by Davison and Germer, because otherwise it was de Broglie's only hypothesis. Hypothesis is confirmed, and now the given energy is a non-relativistic energy. Therefore, E is equal to P square by 2m. P is root 2me, and root 2m E is EV or QE. So it is root 2m QE, and that value I have written. Correct? 14 by मालूम है जी? हो गया. आगे बढ़िए जी. Next. Otherwise, an electron in one-dimensional infinite potential well defined by Vx is equal to 0. Vx is equal to 0 when it is minus a to plus a. Within the well it is 0. Outside it is infinity. That is why it is 1D potential. Otherwise goes from n is equal to 4 to n is equal to 2. कहाँ से कहाँ कूदता है? 4 से 2. Energy is what? n square. h square upon 8 ml square. 4 में है तो 16 और 2 में है तो 4. What is the difference? 4 से 2 में कूद के आया 12 h square by 8 ml square. Delta E is h nu. When the photon is emitted, when the electron will jump from one level to other level, Bohr model says that the photon will be emitted, frequency of photon will be h nu. So delta E is 12 h square by 8 ml square is h into nu. Nu is given. Nu is given. Photon's frequency is given. So h nu energy is known. Good. एक h तो कट गया दोनों साइड. h square by 8 h square by 8 ml h square. हम क्या लिख रहे हैं जी? हमें मान रहे हैं क्या जाए यहाँ पर इसने क्या कहा है -a2. अब हमें 8 ml स्क्वायर नहीं लिखना. क्या लिखना होगा यहाँ? 8 a स्क्वायर. पहले आपको en लिखना होगा. en इज n स्क्वायर. डेल्टा ई इज E4 minus E2. इट इज 12 h स्क्वायर बाई 8 ma square must be equal to your h nu. Nu is something given to you. h cancels out. A is obtained. A is obtained. कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नथिंग. स्ट्रेट. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज? ये क्लास में किया है कि नहीं किया? अरे क्लास में किया है कि नहीं किया है? किया है. कौन सा क्वेश्चन है ना ट्यूटोरियल शीट में? एक जंप कर रहा था, उसमें भी यही था. जंप कर रहा था, किया था ना 16:7 में. तो बॉक्स की लेंथ निकालिए. ये ट्यूटोरियल शीट का क्वेश्चन है. ओनली डेटा हैज बीन चेंज्ड. करेक्ट. सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डन. एनीबॉडी यू कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर. सो यहाँ लिख दीजिए, एक पेज में हो जाएगा. पेपर 2 सी पार्ट. कैलकुलेट the magnetic strength, field strength required to observe the NMR spectrum of protons in the benzene at 120 megahertz, given that value of nuclear G factor for proton is 5.585 nu. B निकालना है आपको. मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. What is the answer for nu? EB nu is EB by 4 pi m into G. यही है ना? NMR का फार्मूला 10 बार क्लास में करा हुआ है. NMR का फार्मूला क्या है? EB अपॉन 4 pi m into G. पूरा ड्राइव कर सकते हैं. पूरा ड्राइव करके लिखिए उसको. प्रोटॉन का एक लेवल होगा प्लस हाफ, दूसरा होगा माइनस हाफ. उनके बिल्ड का डेल्टा एम आई इज 1 प्लस माइनस 1 इज अलाउड. फ्रीक्वेंसी टर्न्स एंड दैट डेल्टा ई हैज टू बी एच न्यू. वहाँ पर भी वही करना है. डेल्टा ई हैज टू बी एच न्यू. एनर्जी का फार्मूला लिखा हुआ. न्यू का फार्मूला लिखवा दिया. कोई इतना समय नहीं है न्यू का. ये भी फार्मूला सब्स्टिट्यूशन है. कराया कि नहीं क्लास में? ये भी कराया हुआ. ये भी 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है. न्यू इज इक्वल टू ई बी बाई 4 पाई एम इंटू जी. जी इज गिवन टू यू. जी इज गिवन टू यू. न्यू इज गिवन टू यू. न्यू दिया कि नहीं? देखो दिया हुआ है. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड.
न्यू इज गिवन टू 120 मेगाहर्ट्ज। एनएमआर का पूरा कॉन्सेप्ट लिखिए, व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, द टेक्निक इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वेयर रेडियो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड, 120 मेगाहर्ट्ज इज ए radio frequency field, induces transition between nuclear energy levels, and whenever these levels matches with the frequency of external field, then resonance occurs and corresponding that maximum energy is absorbed। जट से डायग्राम बना दीजिए उसका, एनएमआर का सेटअप बनाइए, व्हाट आई एक्सपेक्ट, सेटअप ऑफ एनएमआर एंड डायग्राम, सेटअप ऑफ एनएमआर एंड diagram, then this derivation and writing ultimately nu is EB upon 4 pi m into g, 10 lines you have to write before that, 10 lines. What is NMR? Its setup and the energy absorbed, because that is monitored into the setup, then 3 lines the answer will follow. Cross check the calculation, finished. That is also done into the class. D part, C is finished. अच्छा D तो कर दिया, D कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया D। भाई साहब अब देखिए, द रेजिंग J प्लस एंड लोअरिंग J माइनस ऑपरेटर्स आर डिफाइंड बाई J प्लस इज JX प्लस IJY and J minus is JX minus IJY. Now J plus is plus minus H cross J plus। क्लास में कराया है, कराया है, कुछ नहीं है, 5 मार्क्स का। टेस्ट सीरीज में पूछा है, टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, क्लास में भी कराया है और टेस्ट सीरीज में भी पूछा है। करेक्ट भैया, जो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यही वीडियो AITDS वाले के साथ भी अपलोड कर दिया जाएगा। ये नहीं कि फिर से डिस्कस करूंगा मैं। सेम वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड AITDS and same video I am going to upload in YouTube channel also, because people are creating a false narrative against the subject and we have to save the subject। समझ रहे क्या काम कर रहे हैं हम? हमें यहाँ स्टैंडर्ड सेट करना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट इस देश में चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन सी बुक चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ये हम सेट करते हैं। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं इस बात को, और जो यहाँ बैठा हुआ है उसको डेमोक्रेटिक फ्रीडम दी हुई है, जो कुछ भी कमेंट कर सकता है। गुड, कमेंट करने की फ्रीडम सिर्फ किसके पास है? जो पढ़ा लिखा है, जो एग्जाम दे रहा है, जो जानता है कि क्या एग्जाम के लिए क्या रिक्वायर्ड है और क्या रिक्वायर्ड नहीं है। करेक्ट। पीपल कम हियर टू माई क्लास नॉट फॉर द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, दे कम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस, what this examination requires. With my speed this course is finished. I have covered A to Z of paper 2। कितने दिन में खत्म किया भाई साहब? 2 months। 15 जुलाई से शुरू हुआ था बैच, 15 जुलाई से, और यहाँ पर 17 सितंबर के बाद लोग भाग गए थे, सारे भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे? 15 जुलाई, 15 जुलाई, 17 सितंबर, आप कवर्ड A to Z, more than 6.5 questions, 7 questions you can answer। I am just going to demonstrate that 7 questions, और I am not saying, मैं नहीं कह रहा कैमरे के सामने सिर्फ मैं अकेले नहीं बोल रहा, यहाँ जो बैठे हुए हैं इनको दिखाने की कोई फ्रीडम है क्या? हमारे पास अभी कैमरे में ऐसा, हमारा कैमरा फिक्स है, नहीं तो यहाँ जितने बैठे हुए हैं क्लास में, लाइव क्लास है, और कम से कम 40 पीपल हैव डन द पेपर 2 विदिन 2 months। और जो इधर बैठे हैं नए जो आए हैं, वो इनसे पूछ सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास इज टू गिव यू कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। एक पूरा होल एग्जाम, एक होल कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू मी इज व्हाट? टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट। दिस काइंड ऑफ पेपर इज नथिंग डिफिकल्ट। इफ आई हैव डन द क्लास, nothing more than that is required। Definitely class is complete only when you go through one textbook, at least one textbook along with notes and class। that is prerequisite, not that कि book नहीं पढ़ना है। I will never say maybe that you can answer all the questions from classroom, but I have never recommended that you should not read a book। you should read at least one book along with the course, and whatever book you base yourself on, that should be typically Indian writers, because they have got lot of solved problems। Practice all the questions, try to match the answers of that questions, and try to solve the tutorial sheets in whatever kind of advice I am giving you। Almost at the end of every topic I will cover every question which has been asked in the exam within 2-3 days। Whenever the next sheet you are going to get, you will see that tutorial sheets are updated, and they have got the questions of 21, 22 also। This time also we are going to edit the tutorial sheet every time within a week of the exam। My test series are updated and they will work for throughout year। अभी जो बैच है इस साल का पहला बैच है, this is the batch which is you have come, the people who have come on 20th September, this is the first batch for 2023 until and unless new paper comes। When the new paper will come?
September, October 2023. All this material will keep on going. Whatever the material we are sharing, whatever the tutorial sheet we will design for 2023, whatever the test I am going to take in this batch, that will run for throughout 1 year. Only thing now I will edit my material in 2023. Good, so you are lucky. This is the first batch of this particular year. I will be teaching sir 3-4 such batches. Good, and I do not teach many people. कितने आए अभी नए, कितने आए? 30 आए, 30 भी नहीं आए, 25-30 आए हैं. और साल में कितनों को पढ़ाऊंगा? अगर ऐसे 3 बैच पढ़ाए तो कितने पढ़ाया? 75. ये मैं सोच रहा हूँ 75 बैठे हुए हैं. ये राज्यसभा है. मेरा क्लास क्या है? राज्यसभा है. समझ रहे हैं? ये राज्यसभा चला के मैंने इस बैच को क्या किया है? इंश्योर किया है कि हाउसफुल है. सो कैसा है? हाउसफुल. बट इसमें नए कितने आए हैं? सिर्फ 25 और 30 एट द मोस्ट. देयर इज नेवर वैकेंसी ऑफ मोर देन 25 to 30. करेक्ट. इसलिए मैं टेढ़ा रहता हूँ. मैं टेढ़ा क्यों हो पाता हूँ? क्योंकि मुझे कितने लोग बुलाने हैं? सिर्फ 25-30 बुलाने हैं. इससे ज़्यादा बुला ही नहीं सकता. आई कैन नॉट कॉल. एंड कंट्री इज सो बिग. कंट्री इज सो बिग. लोग कोई भी चोरी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. 25-30 तो आ ही जाते हैं. होशियार क्राउड आती है हमारे पास. कौन आती है? होशियार. जो जिसका इथिकल स्टैंडर्ड है. होशियार भी है और इथिकल स्टैंडर्ड भी. चोर नहीं है. गुड. कुछ इस तरीके के भी चोर और एहसान फरामोश पाए जाते हैं जो मेरा नोट्स भी यूज करते हैं, मेरी टेस्ट सीरीज भी यूज करते हैं और मेरे को रत्ती भर भी क्रेडिट नहीं देते हैं. गुड. और उल्टा और लिख देगा कुछ. ऐसे भी पाए जाते हैं. ऐसे कहाँ से खोजता हूँ मैं? ऐसे कैसे खोजता हूँ ऐसे लोगों को मैं? ऐसा मैं सब सोशल मीडिया देखता रहता हूँ ना लगातार. गुड. मेरे चाहने वाले भी खूब सोशल मीडिया देखते हैं. मैं भी खूब सोशल मीडिया देखता हूँ और यही देखता हूँ क्या लिख रहे हैं. गुड. भैया अगर तुमसे एक भी पैसा तुमने नहीं दिया मेरे पास तो तुम्हारा ऊपर मेरे ऊपर क्या क्लेम है? मेरे ऊपर क्लेम किसका है? जो पैसा जो बैठा हुआ है मेरे साथ, क्लेम किसका है? फर्स्ट राइट किसका है मेरे ऊपर? जो बैठा हुआ है यहाँ पर, इसका फर्स्ट राइट है. करेक्ट. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो यहाँ पर बैठा हुआ है, फीस लेके बैठ रहा है, जो मेरी डांट खा रहा है बेचारा, रोज डांट भी खा रहा है. बताओ. तो मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ. क्यों? डांटने का अधिकार क्यों है मुझे? किसने दिया डांटने का अधिकार किसी को? क्योंकि प्रेम भी खूब करता हूँ. I like my all students and I recognize every student. ये भी देखो कि अगर आप 2 साल बाद भी आ जाओगे तो भी मैं आपका फेस याद रखता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं. मैं सबको लाइक करता हूँ, हर एक को. और मेरा इंटेंशन क्या रहता है? सब एग्जाम पास कर जाएं और ज़िंदगी में अच्छा करें. अगर एग्जाम ना भी पास हो, ये नहीं कि सबका एग्जाम पास हो जाएगा. मुझे भी मालूम है एवरीबडी कैन नॉट पास दिस एग्जाम, बट दे शुड डू वेरी वेल. बहुत खुशी होती है. कल मैंने ऐसे ही किसी लड़के को फ़ोन कर दिया, ज्ञान प्रकाश नाम था उसका. मैं किसी ज्ञान प्रकाश दूसरे को ढूंढ रहा था. वो फिजिक्स का स्टूडेंट था, 2015 ज्ञान प्रकाश जी. तो ज्ञान प्रकाश जी इज नाउ ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ भोपाल. ही डिड माई क्लास इन 2015. MSc फिजिक्स करके आए थे. MSc फिजिक्स करके. और MSc फिजिक्स वाले ये सब भी बन सकते हैं, ध्यान रखो. ATC भी बन सकते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. मीटियोरोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं. तो ऐसे ही मैंने रैंडमली आई वाज लुकिंग आउट फॉर सम अदर ज्ञान प्रकाश. और उसमें नंबर था. बोला सर आई वाज योर स्टूडेंट 2015. मैंने कहा क्या कर रहे हो ज्ञान प्रकाश जी आजकल? बोला सर ATC हूँ. अरे मैंने कहा फिर तो तुम अच्छा है, तुम फ्लाइट को आने जाने की परमिशन दे रहे हो. आई हैव डन सो वेल. ही सेड आई हैव डन सो वेल इन लाइफ. अब मैंने कहा ये दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू से. मैंने कहा नए बैच को भी मैंने यही रिमाइंड कराया, एवरीबडी इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन लाइफ. आँख कान नाक खुले रखना पड़ता है. अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके पास आती हैं. जब आती है उसको ग्रैब कर लेना होता है. गुड. पासिंग एनी कंपटीशन इज विद एड ऑन टू योर कॉन्फिडेंस. ध्यान रखना. क्वालिफाइंग एनी कंपटीशन इज एड ऑन टू योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो नॉट दैट कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन, नॉट दैट कि आपको SSC एग्जाम देकर ज्वाइन करना, उससे डिफरेंट है. मतलब जो सिलेबस के साथ जो एग्जाम आ रहा है, सिलेबस के साथ आपको इसी सेम प्रिपरेशन, यू शुड बी एबल टू टेक ऑल द एग्जाम्स. ये नहीं कि मुझे ये जॉब नहीं करना, मुझे वो नहीं करना. ये तो इस तरीके की चीज़ों को मैं क्या समझता हूँ? Arrogance, sheer arrogance कि I'm not going to do this. Don't do that यार. First qualify that exam. पहले तुम क्वालिफाई करोगे कि नहीं, मुझे उस पर डाउट है. और तुम कह रहे हो मुझे बनना नहीं है यार. बनना ना बनना तो तब आता है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाए. छोटे छोटे एग्जाम के लिए उल्टा लटक जाना पड़ता है. हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है. And until unless you are going to meet that requirement, you are not going to be successful in that competition. If you are an MSc pass and meteorologist competition is coming, definitely you should appear at meteorologist competition. If you are ATC jobs are coming, UPSC releases these kind of jobs.
यूपीएससी के उसमें जो सैटरडे को आता है ना, बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं बहुत बार, दे पब्लिश दिस ATC जॉब, meteorologist job, and they are all catered. Assistant meteorologist, they do the entry level. Good things with the same preparation. They are testing only knowledge of physics. If your physics is good, you are able to pass these exams. Good. So I keep on telling you these kind of things. Geophysics का एग्जाम ही पास कर सकते हो. In fact, 5-6 people this year are taking the interview of geophysics with the same preparation. Same preparation. But whom these things are available? किसके लिए? BSc के लिए नहीं, MSc के लिए. इसलिए BSc वाले के लिए पहली एडवाइस क्या होती है? What is the first advice to all person who have done BSc? MSc. समझ रहे हैं? बार बार बहुत बड़ी बात बताता हूँ, फिर सोचना तो 5 साल के बाद कि सर ने क्या कहा था. गुड. मैंने MSc नहीं करी और बहुत घाटा उठाया. अगर मैं MSc कर लेता बीटेक की जगह तो मैं शायद ज़िंदगी में और भी अच्छा करता. मैं ऐसा सोचता हूँ बहुत बार. वैसे मैंने ज़िंदगी में अच्छा किया, ज़िंदगी बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बहुत बार घर में अपनी वाइफ को यही कहता रहता हूँ कि मेरे पिताश्री ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, बड़ी भारी हुआ है. मेरे टाइम में बड़ा भारी वजन था. आज की डेट पर तो इंजीनियरिंग की वैल्यू खत्म हो गई. तो आज की डेट में क्या, मैंने अपने छोटे लड़कों को मैंने इंजीनियरिंग नहीं कराई. मैंने छोटे बच्चों को BSc फिजिक्स कराया, बड़े को कंप्यूटर साइंस कराया, छोटे को मैंने BSc फिजिक्स कराया. तो मैंने कहा फिजिक्स पढ़ने के बाद दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, और लेकिन BSc नहीं कराना. मतलब BSc क्या है? फर्स्ट स्टेप है, स्टार्टिंग पॉइंट है. BSc के बाद तो MSc कराऊंगा या MBA कराऊंगा, जो उसका इंटरेस्ट होगा. लेकिन मेरी अगर इच्छा, लेकिन इच्छा मेरी चलती नहीं है. मैं सोचा मेरी इच्छा चलती है. मेरी इच्छा तो तुम्हारे ऊपर नहीं चलती तो बच्चे के ऊपर तो और भी नहीं चलेगी. तुम्हारे ऊपर तो फिर भी चल सकती है. तुम्हारे ऊपर तो फिर भी चल जाती है. कितने सुन लेते हो 2 घंटे आराम से. उम्र के साथ क्या होता है कि सोचो कि सब अपने बाप को नहीं सुनते होगे. भला बहुत सारे लोग बहस करते रहे फादर से जाके, ठीक, और लेकिन मेरे को सुन लेते हैं. तो बहुत सारे क्या है, जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे यूज करते हैं, फ्रेंड्स. और मैं अपने बच्चे के ऊपर किसको यूज करूं? मेरा बच्चा मेरे को नहीं सुनता बहुत बार. गुड. लेकिन मैं बहुत फ्रेंडली हूँ. आप समझ रहे हैं? जैसे आपके साथ फ्रेंडली बातें करता हूँ ऐसे बहुत. लेकिन क्या है, जैसे आपको भरोसा है ऐसे बच्चों को भी खूब भरोसा है, पापा बहुत होशियार हैं. ये पॉजिटिव बात ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, मैं दुनिया के लिए कुछ भी हूँ, अगर मेरा बच्चा मुझे गधा समझता है तो निपट गधा ही हूँ. मैं हमेशा जानते हो क्या समझता हूँ ऐसा. जिसका बच्चा, देखो हर एक का बच्चा भी अपने माँ बाप का असेसमेंट करता है कि बाप कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, माताजी कैसी है मेरी. हर एक को असेस करता है, बोलेगा नहीं. हर एक के लिए उसके माँ बाप बेस्ट हैं, हर एक के लिए. वो तो कॉमन फैक्टर है. बट एवरीबडी असेसेस. तो अगर बच्चे की नज़र में आपके फादर बहुत स्मार्ट हैं और फादर को मालूम है मेरा बच्चा मेरे को स्मार्ट समझता है, तो फादर बहुत खुश होते हैं, पेरेंट बहुत खुश होते हैं. बस मेरा तो बच्चा दोनों बच्चा समझता है बाबा स्मार्ट हैं, और इसके बाद भी बहुत बार फॉलो नहीं करता है. गुड. फायदा कब है? फॉलो का. जो फॉलो करता है उसी को फायदा होता है. तो मेरी एडवाइस सबके लिए है, जैसे बच्चों को, जो बच्चों को एडवाइस दी वही एडवाइस मैंने आपको दी, या आपको जो दी वही बच्चों को रिप्लेस कर दी जाके. मैं रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको असेस करता हूँ और फिर मैं उसको आप लोगों को बांटता हूँ. फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ना होता मुझे, समझ रहे हैं? मुझे फिजिक्स पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना. ये सब पढ़ के नहीं आया हूँ. ये कुछ नहीं सोचा, मैं कर दूंगा, पेपर देखा, हो जाएगा. लेकिन मुझे रोज़ क्या सोचना होता है कि आज की क्लास में किस चीज़ के बारे में बोलना है, क्या बोलना है मुझे, व्हाट आई हैव टू स्पीक. आई लिमिटेशन इज दैट आई ट्राई टू स्पीक दिस थिंग ओनली इन हिंदी, क्योंकि एक तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबली हिंदी में बातें कर लेता हूँ कंफर्टेबली, और ज़्यादा लोग उसको हिंदी में ही देखना चाहते हैं. दूसरी बात क्या है, बिकॉज टू माई ऑल साउथ इंडियन फ्रेंड्स, to all my South Indian friends and my students, I have got my inherent limitation that I am not very comfortable in English. Not that my English is bad, English is equally good, but my Hindi is much better than my English is. And secondly, my people advise me outside this side that there is more leverage whenever I talk in Hindi. ये बहुत नेचुरल लगता है उसमें. और इंग्लिश में क्या आर्टिफिशियलनेस आ जाती है. जो मेरा अपने फीलिंग है ना चेहरे का, वो शायद में बना के बोलना पड़ेगा. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. पेपर तो ख़त्म करें कम से कम, नहीं तो ये भी लखनऊ के लोगों को लफाजी आंकने की आदत होती है. मैंने कहा ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल फ्रॉम लखनऊ, बिकॉज आई बिलोंग टू माई सेल्फ टू दैट एरिया. लखनऊ कानपुर अगल बगल का जो एरिया है, उस एरिया के लोग किसी को जब उठाते हैं तो ऐसे उठा देते हैं, और जब गिराते हैं तो सीधे ज़मीन पे ले आते हैं. तो इसको भाषा में हमारी कहते हैं लफाजी आंकने की ज़बरदस्त आदत है, उड़ाने की.
Okay, with that, do things. So this question, whole question 1 is complete. Good. Now go to question number 2a. Set up Schrodinger wave equation for one-dimensional potential barrier and obtain probability of tunneling. One-dimensional potential barrier, 20 marks, rectangular barrier, of width L. फाइंड आउट द टनलिंग प्रोबेबिलिटी. टी का फार्मूला निकाल के लिखना है आपको, जो मैंने करके दिया 16 EV0 माइनस E अपॉन दिस वट एवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर के 12. कंप्लीट डेरिवेशन हैज बीन डन. वही करना है आपको 20 मार्क्स. गुड. बी पार्ट ठीक है जी. कुछ पूछना तो बोलो. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्टैंडर्ड है. सो दैट En इज इक्वल टू V इन द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो दैट En is the energy at another level, and V, what do you expect by V? Potential. Good. En is average of V in the stationary states of hydrogen atom. ये भी standard है. चलिए अभी बात करेंगे. We will talk. Good. B part 15 marks. C part क्या है जी? So that for a given principal quantum number, there are n square possible states of the atom. What are they called? This is degeneracy. डिराइव किया मैंने, इसी को 2n स्क्वायर किया. अगर स्पिन को ले लूंगा 2s + 1 GS. दिस इज स्पेस डिजेनरेसी. दिस इज स्पेस डिजेनरेसी. मोशन विद रेस्पेक्ट टू r थीटा फाई मोशन विद रेस्पेक्ट टू फाई गिव्स यू ml क्वांटम नंबर्स. एंड व्हाट वैल्यूज ml कैन टेक? -L2 + L. 2l + 1 समीशन 2l + 1. L विल गो फ्रॉम 0 to n - 1. आंसर इज n स्क्वायर. 3 बार कराया मैंने, करा दिया आपको मैंने. अभी जो सेल मॉडल कराया था उसमें भी बताया था मैंने हाउ that formula 2n square comes. Correct. This has been done. 5 marks. You can easily write and do that. 5 marks. 7 marks. Sorry, 7 mark question. 4 दे देंगे. अब second part. In an atomic state denoted by 4d pi/2. Good. 4 क्या है? 2s + 1 is 4. S is what? 2. S is 2 आ गया कि नहीं? यहाँ से 4s + 1 1 + 3/2. S turns out to be 3/2. 1.5 नहीं 3/2. Yes become 3/2. क्वाड्रुपलेट है. Yes आ गया. D means L is 2. L is 2. J कितना है? 5/2. चलिए. Find the values of L, S, N. J लिख दिया. For this state, what should the minimum number of electrons involved? Suggest a possible electronic configuration. How many minimum number of electrons? How many minimum number of electrons I can have in this? बताइए. Electrons कैसे? S is equal to 3/2. S is equal to 3/2. हाँ, -3/2 + 3/2 -½ +½ How many electrons? 4 electrons corresponding to spin. You can write that thing. कर सकते हैं सारा. यही लिखते हैं आपको. और वैसे भी यहाँ से भी लिख सकते हैं. How many electrons? 2 × 5/2. 2 × 5/2 + 1. Number of electron is corresponding to degeneracy factor. What is degeneracy factor? 2J + 1. Correct. लिख सकते हैं. हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा. हो सकता था कि नहीं हो सकता था? 1 भी हो गया और 2 भी पूरा हो गया. करेक्ट. लेकिन भैया भाई ये गलत है. ये गलत है. क्वेश्चन ही गलत है. इफ V is a potential energy then it cannot be the answer. अब आपको जो करना है वही करिए. जो आपको करना है वही करिए. लेकिन ये आंसर इफ V is potential energy then is not the answer. अब कोई अगर बंगाली V को काइनेटिक एनर्जी समझ ले तो मैं क्या करूं? अगर V को काइनेटिक एनर्जी समझ लो तो आंसर सही हो जाएगा. गुड. पोटेंशियल एनर्जी है तो आंसर सही नहीं है. क्यों नहीं है सही? चलिए V/2 होना चाहिए. दिस मस्ट बी V/2. टोटल एनर्जी मस्ट बी हाफ ऑफ द पोटेंशियल होता है. हाफ V/2 पूरा डिराइव कर सकते हैं. टोटल एनर्जी कितनी? -me4 अपॉन 8 ε0 स्क्वायर h² z² / n स्क्वायर. En -me4 अपॉन 8 ε0 स्क्वायर h² z² / n स्क्वायर. करेक्ट. यही डिराइव करा है. गुड. कैसे करोगे इसको डिराइव? इसको तो डिराइव करना है. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. डिराइव करना है आपको. कैसे करोगे? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. कहाँ से करोगे इसको सॉल्व? कैसे डिराइव करोगे इसको जाके? कितना है? 15. कितने पेज? मैक्स 3 भी नहीं आएगा. 2 दिया रहेगा. 2 नीड टू डू इन 2 पेजेस. आओ
ऐसे करोगे इसको? चलिए सोचते रहो कैसे करोगे, सोचते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा, मैंने कराया हुआ है। अब बताओ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम से करोगे तो 10 पेज में तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम ही आएगी आपकी। कैसे करोगे? कराया मैंने, कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं कराया पहले बताओ? करवाया। कैसे कराया भाई? 2 बार कराया, 2 टाइम्स। गुड। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम, जड़ी न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन घूम गया रेडियस में। गुड। क्या व्हाट इज द फोर्स? mv²/r कितना? 1/4πε0 Ze² r²। करेक्ट। ये कट गया, क्या हो गया आदि? mv²r इज 1/4πε0 Ze²। गुड गुड। सेमी क्लासिकल। क्या किया? रिजल्ट इज सेम वेदर आई सॉल्व आइगन वैल्यू प्रॉब्लम और आई डू द बोर्ड्स मॉडल। आंसर इज इन 1 लाइन। गुड। mv is in the circular motion. What is the force? mv²/r. Where does it come from? 1/4π(z²/r²). Good. Angular momentum is quantized. Even de Broglie says that angular momentum is quantized. mvr is nh/2π. Divide. You get v. Substitute. You get r. Good. What is the total energy? Half mv². What is the kinetic potential energy? Ze²/4πε0. I have written in terms of all these things or not? दोनों को मैनेज किया। गेट आर इन टर्म्स ऑफ nn z आ जाएगा। क्या था जी? एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, मैंने ये निकाल के दिया था। Rn इज दिस एंड Vn वाज e²/4πε0 h क्रॉस z/n। 3 बार एग्जाम में आया कि नहीं? वेलोसिटी भी आई है, रेडियस भी आई है, हर बार पूछते हैं। एवरी टाइम आई आस्क। गुड। Rn आ गया। व्हाट इज द के? mv²। बताओ जी, इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? बताओ मुझे। हाफ m e⁴ 4πε0 h क्रॉस होल स्क्वायर z²/n²। ओरली आ गया। सिंप्लीफाई करके बता देंगे क्या हो जाएगा। देखो me4 4πε0 h क्रॉस इज h/2π। h/2π कितना हो गया? h/2π 2ε0 h क्रॉस। तो कितना हो गया? 4। तो हो गया 8ε0² h²z²/n²। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी? -Ze² 4πε0 r है। r का एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख दो। me4 जो भी a0 था, मैंने a0 के दिया, दोनों से डिवाइड करके r की वैल्यू लिख दो, वो भी आ जाएगा। इसको दोनों को सेट कर लेंगे। ये भी आ गया। दिस इज माई वी, दिस इज माई वी, दिस इज योर के। 8 बोथ ऑफ देम वी विल गेट द आंसर व्हाटएवर। करेक्ट जो है वही आपको लिखना है। until unless because he has not written what is v. अब ये one choice that you can say that question is wrong. Yeah. One choice is that you can say question is wrong और उल्टा घूमते रहो ऐसे दिमाग। ये तो v/2 आ रहा है। जो मैंने आपका v का जो डेफिनेशन है, आपका जो v का डेफिनेशन है, आपका v का डेफिनेशन ये ना Ze²/4πε0। तो आपका आ जाएगा En इज v/2 करके देख लीजिए। En आ जाएगा आपको v/2। गुड। बट इफ आई से v इज काइनेटिक एनर्जी, कहीं लिखा है कि v काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती? बंगाली के लिए नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। कोई कुछ भी नोटेशन मांग ले, जैसे मैंने टी माना था, अगर उसने v को काइनेटिक एनर्जी मान ले तो आंसर सही हो गया कि नहीं? गुड। मैं इस बात को कहने से बच गया कि पोटेंशियल एनर्जी गलत है। पापा वी उसने डिफाइन किया है क्या? कहीं लिखा है उसने वी पोटेंशियल एनर्जी? बताओ। उसने लिखा है कि वी पोटेंशियल है? नहीं लिखा है। करेक्ट। अब आपके पास चॉइस है, समझ जाओ। उदाहरण दे रहा हूं। मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बन गई और आप उसको लाइक नहीं करते। समझ लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। आप उसको लाइक नहीं करते और आप हो गए उसके सेक्रेटरी, ओएसडी हो गए उसके, नौकरी के थ्रू नहीं हो सकते।
और वो किसी बात पे कुछ बोल रही है कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लगा के कह रहे हैं मैडम जी आप गलत बोल रही है, ये तो एकदम गलत है, वो कोई चीज़ बोल रही है जो आपके हिसाब से एकदम फैक्चुअली गलत है। गुड, अगर आपको टोक देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके, अगले दिन स्टोरी छप जाएगी जो उसके OSD है ना, और मैडम जी की फॉलो नहीं करता है उसको, करेक्ट, तो किसकी बदनामी होगी? उसकी बदनामी होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी। आपको तो कान पकड़ के अगले दिन, नहीं बाहर भाई साहब भारत सरकार के 312 आर्टिकल है आपके फेवर में, करेक्ट है, बाहर नहीं निकाल सकती। सिर्फ आपको क्या कर, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट जगह आप बैठे थे वहाँ पे आपको लूप लाइन में, संटिंग लाइन में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके लोगों को इथिक्स सिखाइएगा। इथिक्स सिखाने के लिए तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जाने का फाइट नहीं कर रहे हो यहाँ पर कि इथिक्स का पेपर पढ़ाने लग जाओ, तो फिर तो कोचिंग में पढ़ा लो, ज़्यादा पैसा कमा लोगे। कोचिंग में अगर इथिक्स पढ़ाओगे तो ज़्यादा कमाओगे, वहाँ तो 2-2.5 लाख की सैलरी मिलनी है और तो कुछ नहीं मिलना है। गुड, मैं भाई साहब विद ड्यू रेस्पेक्ट क्योंकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे IAS ऑफिसर भी अकेडमी में पढ़ाते हैं एंड दे एंजॉय, बहुत सारे IAS ऑफिसर भी अकेडमी में पढ़ाने जाते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेम और प्रेफरेंस है, मैं जिन लोगों से बातें करता हूँ उसमें बहुत ही कम ऐसे हैं जो पढ़ाने के माइंड सेट से ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग कराते हैं। मोस्टली वही होते हैं जिनको पॉलिटिकल लूप लाइन या सेंटिंग में भेज दिए जाते हैं बेचारे, और उसमें ट्रेनिंग अकेडमी में भी आधे से ज़्यादा तो फैकल्टी होते हैं जो बाहर से, क्योंकि IAS उतने भी IAS नहीं मिल पाते जितने चाहिए होते हैं वहाँ पर, तो फिर वो बाहर से टीचर के थ्रू फैकल्टी की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करते हैं। तो कोई भी शायद मेरी समझ में IAS का एग्ज़ाम इसलिए पास नहीं करता कि पूरी ज़िंदगी उसकी ट्रेनिंग सेंटर में गुजर जाए, फिर तो ट्रेनिंग डायरेक्ट ही टीचिंग करते तो ज़्यादा बेनिफिट था। खैर, तो हमने बताया कि आपको कैसे बचाना होता है। अब मैं कह देता, वैसे तो आपने निकाला यहाँ तक, उसके बाद कह देता V इज, इफ वी एज्यूम दैट V इज ए काइनेटिक एनर्जी, आंसर इज रॉन्ग। वो कितना खुश होती भाई जो कह रही थी, आप भी कुछ कह देते, आप मैडम जी ऐसे ऐसे कह रही है, उसको ढंग से ये कहने की जगह कि आप गलत है, आप उसको कुछ ढंग से कह देते प्रेस के सामने, मैडम जी जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है। गुड, कालिदास ने विद्योत्मा वाला केस नहीं हुआ था, क्या हुआ था, उसने कहा ऊट उष्ट उष्ट, तो उन्होंने पंडितों ने इंटरप्रेट कर दिया कि उष्ट उष्ट कह रहा 2 आंखें हैं, ब्रह्म और विद्या 2 है। विद्योत्मा और कालिदास वाली कहानी सबको मालूम है कि नहीं? आपको कभी कहानी तुम साथ, विद्योत्मा और कालिदास की कहानी है कि विद्योत्मा किसी उज्जैन के राजा की बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, और उसको उस जमाने में लड़कियों को शादी करने का जो सिस्टम था वो स्वयंवर होता था। स्वयंवर, दे यूज्ड टू इनवाइट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स, दे विल कम एंड दे विल आस्क द क्वेश्चंस। सो बहुत एरोगेंट थी, बहुत होशियार है, बहुत खूबसूरत है, राजा की बेटी है, तो उसने बहुत सारे लोगों को जो एलिजिबल बैचलर्स थे उनको क्या भगा दिया करती थी, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन पूछती थी और उसका आंसर नहीं दे पाते थे तो डिस्करेज होके भाग जाते थे होशियार आदमी। बड़े बड़े राजकुमार डिस्करेज होके चले गए, प्रिंसेस। फिर क्या किया, उन लोगों ने देखा एक कारपेंटर पेड़ काट रहा है, जिस पेड़ में बैठा है उसी को काटे दे रहा है, वो कह रहा यही है सफिशिएंट आदमी उसके लिए। तो उसको उन्होंने खूब कपड़े अपने अच्छे से कपड़े बनाए और उसको बना ठना के लेके महाराज हैं, मतलब कोई प्रिंस हैं किसी बड़े स्टेट के, यहाँ लेकिन एक मौन व्रत रखे हुए हैं। तो ही विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस ओनली इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। आप जो कुछ भी पूछोगी उसका ही आंसर करेंगे और हम इसका इंटरप्रेट करेंगे। एंड ही विल आंसर इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। सो गए, वो तो बड़ी एरोगेंट थी, किसी को भी कुछ भी, मतलब कोई भी चला जाए, मतलब उसको मालूम था भगा ही देना सबको। तो कालिदास जी को ले गए, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन था यू हैव नॉट टू स्पीक एट ऑल, तुम्हारी शादी से करा देंगे। वैसे पंडितों को नाराज करना बड़ा बुरा होता है। पंडित कुछ भी कह सकता है किसी को, तो सब लेके गए उसको और कौन लेके जा, किया करवाया किसने, राजकुमारों ने। तो संग संग इंटरप्रेट करने के लिए उसके साथ लोग गए। देन ही शास्त्रा चालू हुआ उसमें, उसने कहा कि ब्रह्म एक है। विद्योत्मा सेड दैट ब्रह्म इज ओनली वन। अब वो महाराज जी बोले उसको, तो उसने कहा आँख फोड़, ऐसे आँख दिखाई उसने, ये कह रहे तुम्हारी आँख फोड़ दूंगी। उसने इंटरप्रेट किया, कह रही है तेरी आँख फोड़ दूंगी। तो उसने कहा दो, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। उसने सोचा कि मैं तेरी दोनों फोड़ दूं।
पंडितों ने इंटरप्रेट कर दिया कि आत्मा और ब्रह्म, आप मैडम जी कह रही हैं ब्रह्म एक ही है, ये कह रहे हैं दो है, आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग है। शास्त्रों जो पंडित बैठे हैं उनसे कंसल्ट कर लो, आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। सही है, भाषा उनकी शादी में अब आप शास्त्रार्थ में डिफीट हो गई। जितनी जितनी महफिल बैठी उन्होंने कह दिया, तो अल्टीमेटली विद्वत्मा को क्या करना पड़ा, कालिदास से शादी करनी पड़ी। ये कहानी है जी। और फिर अब जब उसको मालूम पड़ा है तो निपट मूर्ख है। जब वो उष्ट उष्ट ऊँट को कुछ बोल रहा था उष्ट उष्ट, तो उसने उसको स्कोल्ड किया कि भाई शादी तो हो गई, शादी तो पंडितों ने करा दी, अब इतना मूर्ख मेरे जब पल्ले पड़ गया है। और जल्दी पल्दी अब आज की जैसे था नहीं कि आराम से छोड़ के रख सकते हैं, वो भी फ्रीडम नहीं थी, रहना भी है। तो उसको बात लग गई कि मुझे इतना मेरा अपमान कर रही है, उसको बात लग गई। तो उसने विद्या अध्ययन करना चालू किया और अंदर ही बिके में लर्नड और मेघनाद और मेघदूत और अभिज्ञान का शाकुंतलम, वो सब ऐसी स्थिति में किताबें लिखी गई हैं। एंड दैट इज हाउ ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टॉलेस्ट थिंग इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ प्रेजेंट एज। इवन होल वर्ल्ड ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट। एंड अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र, 4 किताबों के नाम बता दिए। मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, they are all drama books. They are regarded as classical literature in Sanskrit. Good. चलिए जी 3 है। What is spin wave function for s is equal to half if the spin component in the direction of unit vector eta has a value of half h cross? 15 marks. What is the spin wave function? Spin wave function if the spin component in the direction of unit vector eta has a value of half h cross. This requires little understanding. Already I have given the same question in this year test series. This year test series I have given the exactly same question, but it will take time. It will take about 5-10 minutes because to explain it will take 10 minutes. कुछ नहीं है करना. Unit vector eta. Unit vector eta in 3 dimensions they will write. What is unit vector eta? कैसे लिखेंगे unit vector eta? Normal in r theta 5 coordinates. Unit vector normal vector in r theta 5 coordinates. How unit vector can be written in r theta 5 coordinates? Sin theta cos phi I plus sin theta sin phi j plus cos theta k. That is eta vector. Now yes, spin in the direction of eta. Spin क्या? Sxi, Syj, Szk multiplied by eta. So you have got the s, जिसकी वैल्यू मेजर करनी है आपको. Yes measured in state chi is equal to half h cross chi. Correct? बन गया जी. देखो ये थोड़ा दिस गुड क्वेश्चन. एन क्या था, क्या मेजर किया था मैंने? एक्स कोऑर्डिनेट में कितना था? साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के. और यस क्या है जी? एस स्पिन क्या है जी? एस एक्स आई एस वाई जे एस जेड के. और सारे एस एस यू नो एस इज आल्सो हाफ एच क्रॉस सिग्मा. Yes, also you know is half h cross sigma. That is S vector. Good. Yes. फ्रेम एंड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. हमको S मेजर करना है. किस डायरेक्शन में करना है? n में करना है. यही तो मेजर करना है. क्या मेजर करना है? S इन द डायरेक्शन n. S डॉट n कितना हो गया जी? एस एक्स साइन थीटा कॉस फाई एस वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस एस जेड कॉस थीटा. दैट इज एस डॉट एन. दैट इज एस डॉट एन. दैट इज व्हाट आई वांट टू मेजर. आई वांट टू मेजर इन सम स्टेट. का स्टेट ही चाहिए ना मुझे. आई वांट टू मेजर दिस थिंग. आई वांट टू मेजर एस डॉट एन वेयर काई. व्हाट इज आंसर? आप एच क्रॉस काई. करेक्ट. यही हो गई ना आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. काई निकालना है. काई एस एक्स मालूम है आपको, एस वाई मालूम है आपको, एस जेड मालूम है. व्हाट इज एस एक्स? हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स, हाफ एच क्रॉस सिग्मा वाई, हाफ एच क्रॉस
सिग्मा जेड, गुड। काई 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 घर में जाके करेंगे, एसदार लिख दिया। काई काई को क्या लेना है आपको, काई हैज टू बी C1 काई प्लस C2 काई माइनस एंड C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इज 1। दोनों साइड लिखेंगे, बोथ द साइड्स। यस एन मैंने कहा यस एन काई इज और एच क्रॉस बाई 2 काई। एस एन जो भी एस एन है, एस एन किस में ऑपरेट हुआ है, C1 काई प्लस C2 काई माइनस। एस एन की वैल्यू एस एक्स प्लस वाट एवर C1 काई प्लस C2 काई माइनस इज व्हाट एच क्रॉस बाई 2 C1 काई प्लस C2 काई माइनस। करेक्ट। टेक बोथ ऑफ देम, ऑपरेट। एस एन आपको सब मालूम है, एस एन आपको सब मालूम है, आपको इसमें सारे मालूम है। यह स्टेट है आपको, एस एन काई इज एच क्रॉस बाई 2 एच क्रॉस बाई 2 दिस काई प्लस एंड काई माइनस, यू हैव टू फाइंड आउट। क्या करना है आपको, काई प्लस काई माइनस फाइंड आउट करना है। एस एन में आपको जो भी वैल्यू है, क्या है एस एन में बताओ, एस एन में क्या है, एस एन में क्या है बताओ, कॉस थीटा पहला क्या था, कॉस फाई साइन फाई साइन थीटा पहले माने में, नहीं कॉस थीटा साइन फाई एस एक्स, यही है। अरे एस एन क्या है पहला, साइन थीटा साइन फाई एस एक्स, करेक्ट। साइन थीटा एस एक्स, गुड, एस एक्स प्लस ऐसे ही बाकी सब। ऑपरेट C1 काई प्लस C2 काई माइनस, अलग अलग ऑपरेट करो हर एक के साथ, और फिर दोनों के साथ कॉमन लेना है। दैट इज एच क्रॉस बाई 2 C1 काई प्लस, एंड दिस टेक द कॉमन, एच क्रॉस बाई 2 C1 काई प्लस एच क्रॉस बाई 2 C1 काई माइनस, एंड इक्वेट बोथ द थिंग्स, बोथ द साइड। साइन थीटा कॉस पाई एस एक्स ऑपरेटेड ऑन C1 काई प्लस, क्या करना है पहले आपको, एस एक्स काई प्लस एस एक्स काई माइनस, व्हाट इज दिस वैल्यू, एस वाई काई प्लस एस वाई काई माइनस, एस जेड काई प्लस एस जेड काई माइनस। व्हाट इज एस जेड काई प्लस, एस जेड काई प्लस हाफ एच क्रॉस काई प्लस, व्हाट इज एस जेड का, हाफ एच क्रॉस काई माइनस। इस तरीके से ऑपरेट करोगे, ये होगा साइन थीटा कॉस पाई एस एक्स C1 काई प्लस एस एक्स काई प्लस हैज टू बी इवैल्यूएटेड। सिमिलरली एस एक्स काई माइनस हैज टू बी इवैल्यूएटेड, गुड। ये वैल्यू क्या है, एस एक्स काई प्लस, if I am not wrong, it is half h cross chi minus एस एक्स काई प्लस, ऑपरेट करके देखिए एस एक्स काई प्लस, ऐसे ही एस एक्स काई माइनस, ये सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। cos थीटा बाई 2 आएगा, काई प्लस विल टर्न आउट टू बी योर cos थीटा बाई 2 एंड काई माइनस विल टर्न आउट टू बी e raised to power 5 sin थीटा बाई 2। C1 will turn out to be, क्या है वे पंक्ति, व्हाट इज द कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट स्टेट क्या लिखी है मैंने, C1 काई प्लस C2 काई माइनस, दिस C1 and C2 C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज 1, that will turn out to be cos theta, C1 will turn out to be cos theta by 2, C1 will turn out to be cos theta by 2 and C2 will turn out to be sin theta by 2 e raised to power iota I5, e raised to power iota I5. Whenever you will do square, C1 star C2 star C2, that will turn out to be 1। करके देख लीजिए, एक को बताया मैंने cos थीटा बाई 2, एक को बताया sin थीटा बाई 2 e raised to power iota 5, and whenever you will take C1 star plus C2 star will turn out to be 1। State has turned out to be, आंसर बता रहा हूँ आपको कैमरे के सामने, C1 काई प्लस C1
chi plus, if I am not wrong, it is cos theta by 2 1 0 प्लस साइन थीटा, प्योर मेमोरी से कर बता रहा हूँ आपको, ई रेस्ट पावर आई फाई करके देख के बताइएगा मुझे। दैट इज द स्टेट काई, दैट इज द स्टेट काई। कैसे आएगी स्टेट, क्या हो गया काई, क्या हो गया स्टेट काई? cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ई रेस्ट पावर आई फाई। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, बट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मेथड। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आई वाज दिस ईयर in my test series, full length paper 2, that is the third question in compulsory part also I was exactly similar question, यही सब पूछा मैंने आपको। that is how that question was been there, but this was a little good question. This was, whosoever would have done this question correct, good, I will give 70% marks. समझ रहे भाई साहब, आप ये समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? I will check the standard of question paper and standard of student. Whosoever make 3 question correct, question number 3, whosoever will attempt and make it correct, what marks I am going to give in the exam? 70%. Because I do not expect run of the mill students to attempt this question. This question is not for Tom, Dick and Harry. Tom, Dick and Harry can do the question number 4. ये पार्ट देखते ही विजल आउट हो जाएगा, लेकिन होशियार जो क्राउड होगी, बहुत होशियार क्राउड होगी मेरे नजर में, उससे क्या क्वेश्चन करना चाहिए? Question 3A, because that will be easily making the difference between good student and average student. Mediocre, mediocre जो मेहनत करके मार्क्स लाया है, मेहनत करके मार्क्स लाने की लिमिट कितनी है? 65%, करेक्ट। लेकिन ये जैसे इसमें 70% दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? पूरी आंसर शीट को रिवाइज कर दूंगा। पहले पेपर क्वेश्चन में भी उसको 7 दूंगा, जहां 6.55 दिए थे ना, क्या कर दूंगा उसको? 7, because I have regarded that student is, because question 1 this year is cannot delineate. Many of the times question 1 is so nicely framed that question 1 describes me that student is outstanding or it is excellent. Question 1 itself makes a difference, but this time question 1 is simple. Question 1, many people will make it the question 1 correct. So now how I am going to decide who is outstanding? Question 3, because every other question is run of the mill, हो जाएगा आराम से। चलिए जी क्विकली, और ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने पेपर को ढंग से पढ़ा है क्लास को तो ये भी हमने कराया है। हमने ये, और ये टेस्ट पिछले साल का क्वेश्चन भी है किसी तरीके का है, 2019 या 20 में जो क्वेश्चन आया है वो भी इसी तरीके का, एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एंगल, यही एंगल दिया हुआ है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम ट्रेंड, कंटिन्यूएशन ऑफ सेम ट्रेंड। गुड। 3A 15 मार्क क्वेश्चन, नॉट बहुत बड़ा नहीं है वैसे। बी पार्ट कुछ करना ही नहीं है। Why does Stern-Gerlach experiment enjoy so much importance? Every time I ask why, spin introduces the concept of experimental demonstration of spin, experimental demonstration of space quantization of angular momentum, discrete values of magnetic moment, vector confirmation of vector model of an atom. Correct? 4 चीजें बता दी। Draw the schematic diagram of this experiment, comment on the shapes of the magnetic pole pieces. कैसे होते हैं? Non homogeneous magnetic field होते हैं, बना दी डायग्राम। वाई वाज द एटॉमिक बीम ऑफ सिल्वर यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट? सिल्वर क्यों यूज किया था मैंने? 5s1 था, उसमें L0 होता है। आई हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट द स्पिन, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन द सिल्वर एटम। आंसर द क्वेश्चन और नॉट? पिन पॉइंटेड है, कोई महाभारत लिखनी है? नहीं लिखनी है, डायग्राम बनाना है और इलस्ट्रेट करना है। कर दिया था क्लास में? कर दिया था जी। ए भी किया था वैसे, आपको समझ। सी, डिफाइन फ्रैंक-कोंडन प्रिंसिपल. How does it help in explaining the intensity distribution of vibration spectra of diatomic value? करा दिया क्लास में, गुड। तो अगर इसका ए पार्ट आता था तो सब कुछ हो जाता कि नहीं हो जाता? गुड। ए पार्ट थोड़ा का लेंदी भी था, थोड़ा सा लेंदी था, नहीं तो बाकी तो कुछ नहीं किया। S.n, अगर आपको n लिखना नहीं आता तो फिजिक्स क्यों ले रहे? गुड। S.n को सॉल्व करना था आपको। स्टेट क्या होती है? C1 का I प्लस और C2 का I माइनस होती है। C1 C2 डिटरमिन करने हैं आपको, C1 एंड C2 डिटरमिन करने। दोज 2 पार्ट्स आर प्रीटी सिंपल। गुड। क्वेश्चन 3 इज आल्सो फिनिश। क्वेश्चन 2 पूरा हो गया था, क्वेश्चन 3 भी पूरा हो गया, किया हुआ है आपने। क्वेश्चन 4, इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल when one constituent atom is replaced by one of its heavier isotopes, what changes takes place in the rotational spectrum? B क्या था? H upon 8 pi square C I. I is moment of inertia, mu R square. Mu is M1 M2 upon M1 plus M2. Good. If it is replaced by heavier isotope,
For example, HCl, H1Cl 35 point replaced by H2Cl. Mu will increase, B will decrease, it will be compressed. Rotational spectra which are separated by distance 2b, it will be compressed. Good. Rotation. Calculate the change in rotational constant B when hydrogen is replaced by deuterium. यही किया ना H1Cl, H2Cl. Draw the spectrum of rigid and non-rigid rotators. ये भी कराया आपको. क्या था? BJJ plus 1 minus DJJ plus 1 whole square. Using the schematic rotation energy levels and comment on it. कितने नंबर? 20. कितने पेज? 4 या 5. पूरी महाभारत लिख सकते हो, पूरे बढ़िया से डायग्राम बना सकते हो, 10 लेवल गिना के 4 5 6 लेवल बना के डायग्राम बना सकते हो, लेवल दिखा सकते हो. ये सब व्हाट आर द रिजल्ट्स वी डू ऑब्टेन सब डिस्कस कर सकते हो, सब किया है हमने. बैनवेल की किताब में भी लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, हमने पढ़ाया हुआ है कि नहीं. नॉन रिजिड रोटेटर भी पढ़ाया हुआ है कि नहीं, आपको पढ़ाया हुआ है नॉन रिजिड रोटेटर. क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया. बी पार्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इनहार्मोनिसिटी इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल. डिटेल में बता दिया आपको. देन कैलकुलेट द एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल इफ इट इज इन J इज इक्वल टू 3 स्टेट. एवरेज पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है क्या? टाइम पीरियड. इंटर न्यूक्लियर स्टेशन दिया हुआ है. एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 3 रोटेशनल स्टेट. J इज इक्वल टू 3 रोटेशनल स्टेट. कितनी एनर्जी है J इज इक्वल टू 3 में? कितनी एनर्जी है? 2 लेवल के बीच J इज इक्वल टू 3 में एनर्जी कितनी है? BJJ प्लस 1. B कितना? H अपॉन 8 पाई स्क्वायर C म्यू आर स्क्वायर. म्यू मालूम पड़ गया उसका. और वैसे भी याद कर लो तो अच्छा ही है. ये सब स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है. ये सब किताब में 4 बार प्रॉब्लम करोगे तो याद रहना चाहिए डेटा. म्यू आर स्क्वायर. गुड. HCl मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, R दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ. B निकल गया. BJJ प्लस 1. BJ आपको कमेंट नहीं करना, आपसे सुनते रहिए, बस आज की क्लास आपको सुनने के लिए है. BJJ प्लस 1. गुड. दिस इज रोटेशनल एनर्जी. क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यही होती है कि नहीं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर टर्न्स आउट टू व्हाट? BJJ प्लस 1. ओमेगा निकल गया. I is given to you, omega is obtained. From omega you can find out T 2 pi by omega. 2 pi by कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे जी? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ो, कर तो सकते, करना कहीं. I have done it in the class. I have asked the same question in test series. Last year I have asked the exactly same question in test series. Same question. Good. J इज इक्वल टू 3 समझ में आ गया. J इज इक्वल टू 3 में एनर्जी कितनी? BJ प्लस 1. B भी नहीं लिखना यार. H अपॉन 8 पाई स्क्वायर CI लिखो, वहां से कट जाएगा कुछ ना कुछ. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. फ्रॉम देयर यू कैन गेट द ओमेगा. आई यू कैन कट बोथ द साइड्स. क्या कहा इसको? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज BJ प्लस 1. फ्रॉम देयर यू कैन गेट. गुड. 15 मार्क्स. तो ऊपर वाला 5 मार्क्स, दिस इज 10 मार्क्स. ये ध्यान रखना. 10 मार्क्स. 10 मार्क्स मीन्स मैक्सिमम 1.5 पेज, नथिंग मोर देन दैट. C part obtained the normalized आइगन वेक्टर्स ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. निकाल के दिया आपको आइगन वेक्टर्स का i प्लस एन का i माइनस. गुड. सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. गुड. ऑल द 4 क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड. बताइए भाई साहब आंसर हुए कि नहीं? बताओ. हो गए? क्या नाम है? हाँ आदित्य साहब. क्वेश्चन पूरा 2 महीने में कर सकते थे कि नहीं? है यू आर इन ए पोजिशन टू डू इट. गुड. भाई साहब आप you are in a position to do it or not? Good. So before camera, all the people who are sitting here, all these 4 questions has been done in the class, and they are feeling confident that they could have done the same paper. If they would have got a chance to write this paper, they would have made all 3 questions correct. भाई साहब अगर आपको 3 नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, चौथे को कर लो, चौथे कर लो. हर एक को थोड़ो 70% आना है. 70% एक को ही आना है ना किसी को. जैसे सबको 70% आ जाएगा. नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल. 3 का क्वेश्चन कर लेते करेक्ट, वही बड़ी बात थी. 3 तो हो गए कि नहीं हो गए? ऑल द 4 क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर. सेम वे क्वेश्चन 5 इज आल्सो वेरी सिंपल. ये सब कराया हुआ है. एवरीथिंग आई हैव गॉट इट डन इन द क्लास. सब कराया. एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन नॉट एग्जिस्ट if the nuclear force is charge independent neutron and proton from a bound state. Why is no bound state for 2 neutrons? What information does it gain? Then देखो
Explain why type 2 superconductor is better than type 1 superconductor in the application of superconducting magnets. Why is the field effect transistor called unipolar transistor? ये तक बता दिया था मैंने क्लास में भाई साहब। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा था तभी भी मैंने बीजेटी का और जेफेट का अंतर बताया था। कौन? हु इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, व्हाट इज करंट कंट्रोल डिवाइस, व्हाट इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कॉल्ड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, डिस्कस हाउ इट इज सुपीरियर देन bipolar junction transistor, that means comparison between FET and BJT. It have two main points already I have told you. One is voltage driven device, BJT is current driven device, that is a potential driven device. That is the basic difference. E part, why NAND and NOR gates are called universal gate? Give the logic diagram and Boolean expression for the truth table of a XOR gate. बता दिया आपको, बता दिया जी आपको बैच में, यही करा जी। फिनिश्ड हो गया क्वेश्चन 5। देखिए भैया क्वेश्चन 5 इज आल्सो फिनिश्ड। अब कितना चूज करना है दूसरे से? 1। हम आपको कितने चूज करा देते हैं लोग? हम क्वेश्चन आपको 6 कराते हैं, हम तो 7वां पकड़ लेते हैं जी तुरंत ही। ये लो जी, हमने 7 पकड़ा। ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कैन अंडरगो ए रेडिएटिव कैप्चर। क्या? रेडिएटिव कैप्चर। पार्टिकल इज कैप्चर्ड एंड प्रोटॉन इज एमिटेड। किसने किया? न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को क्या कर लिया? कैप्चर। n प्लस पी इज डी प्लस गामा, स्टैंडर्ड रिएक्शन। n प्लस पी इज डी प्लस गामा। गुड। फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड इन दिस कैप्चर। कैसे निकालोगे एनर्जी? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू नेट क्यू वैल्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। दैट डेटा इज गिवन टू यू, राइट? निकल गई कि नहीं एनर्जी? ठीक है जी। दिस इज द रिकॉइल ऑफ द ड्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट। इज द रिकॉइल, अगर ये दोनों रेस्ट में है, बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट, रिकॉइल में क्या होना चाहिए दोनों को? बोथ ऑफ देम आर 180 डिग्रीज, देन ओनली इट इज रिकॉइलिंग, देन ओनली इट इज रिकॉइलिंग। करेक्ट। सो रिकॉइल के लिए आप देख लीजिए एनर्जी सफिशिएंट आर नॉट, यू कैन कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉइल आल्सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एंड गामा। करेक्ट, यू हैव टू कमेंट ऑन दैट थिंग। तो करा हुआ है 7B 15 मार्क्स। एनर्जी निकालनी है, फिर रिकॉइल के बारे में बात करनी है आपको। सी पार्ट, सॉरी भैया, बी पार्ट क्या है? ये क्या है? बी है, ये बी है, ये बी है। ए क्या है? एक्सप्लेन ड्रॉबैक्स ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड हाउ इट वाज ओवरकम बाय डिवाइस। ग्रेट डिटेल्स, all the great details. What is the difference between Einstein's theory and device theory? How the device overcame? That is, there was single frequency. Here they are operating with the frequency spectrum. Then the third point, that there was only 3 degrees of freedom. Here the individual degrees of freedom didn't have any count. Then 4 different differences I have told you, and I have derived the complete thing. किया हुआ है जी। 20 मार्क क्वेश्चन, डायग्राम बना के पूरा लिख सकते हैं स्पेसिफिक। A finished, B finished. See, compare the dependence of resistance on temperature of a superconductor with that of a normal conductor. Describe briefly the formation of Cooper. पूरी मैकेनिज्म समझा दिया, how the Cooper pair is formed. Now dependence of resistance का तो नहीं बताया यार, बताया क्या? हाँ, वो रेसिस्टिविटी है, करेक्ट। रेसिस्टिव किताब में ढूंढे नहीं मिलेगा चिराग लेके, समझ गए जी? एग्जाम कनेक्टिविटी का है, ठीक है जी? तो रेसिस्टिविटी मालूम है आपको, कंडक्टिविटी मालूम है आपको। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। हाउ डज द रेसिस्टिविटी चेंज? यू नो हाउ रेसिस्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। द रेसिस्टिविटी इज व्हाट? rho L by A. R is what? rho L by A. L and A are the characteristic for any conductor. So R is depending upon what? Rho. R is depending upon what? Rho. ये कनेक्टिविटी मालूम है कि नहीं आपको? If rho is known, then R can be predicted for a particular cross section. L and A you can choose on your own. So variation of R with respect to temperature is nothing but variation of rho with respect to temperature. Variation of rho is reciprocal that of conductivity, and you know how conductivity of these kind of materials varies. हमने आपको बता रखा है। इतना कनेक्टिविटी आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? You knew the entire question number 7. Good. क्वेश्चन 8 भी आपको आता। क्वेश्चन 8 हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्वेश्चन 8 भी आता। क्वेश्चन 6 भी आपको आता, और पीछे करो। क्वेश्चन 6 भी आपको आता,
Question 6. Write down the Weizsäcker semi-empirical mass formula and explain each terms. Explain why 90 to 28 nuclei in alpha emitter, not a beta emitter. Energy के हिसाब से, mass difference के हिसाब से you can talk. This is also given as a solved problem in DC Towels book. Beta decay कब होगा, कब alpha decay होगा, on the basis of energetics. And energetics Q value can be obtained on the basis of masses, and masses can be predicted from semi-empirical mass formula. That is what is the application. So 6C हो गया. कितने नंबर का? 20 marks. Good. B part. Considering atoms hard uniform spheres, find the number of atoms per unit cell of packing fraction for simple cubic, BCC and FCC. कौन सी क्लास का है? 12th क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आपको आना चाहिए था जी. ये हमने छोड़ दिया आपके लिए. So that for a specific value NL, there exists a large degeneracy due to energy characterized by quantum number n. Find the cell closures and the magic numbers predicted by harmonic oscillator potential. तो आप इसको कर सकते हैं. तो मैं तो ऐसे छोड़ देता आपको. 6 क्वेश्चन आप इसको कर रखे थे तो अच्छा, मैंने कहा हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल को पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी पे होगा. अदरवाइज आप इसके 2 पार्ट आराम से कर सकते थे. 7 क्वेश्चन पूरा हो सकता था, 8 क्वेश्चन आपका पूरा हो सकता था. मुझे एक ही क्वेश्चन करना था. हो गया पूरा पेपर. गुड. हाउ वाज द पेपर? हाउ वाज द पेपर? अरे भाई साहब 5 लोग बताइए पेपर कैसा. कौन आकर पक्के बताएगा पेपर कैसा था?